Hello everyone. In this lesson or video we are going to solve the last two questions of the exercise 7.1, which is based on the triangles from our class 9th standard at NCERT syllabus. Only two questions are remaining, which is 7 and 8. I am starting from the given question 7th. And the 7th question is, a structure is given like this. This is a structure is given in the question, and the question is AB is a line segment. AB is a line segment. ठीक, and P is its midpoint. ये जो point है P, this is the midpoint of AB. D and E are points on the same side of AB. These 2 points are given which are exist in the same side of AB, such that angle BAD is equals to angle ABE. Is equals to angle ABE, and angle EPA is equals to angle DPB. These both angles are equal. Then prove that triangle DAP is congruent to triangle EBP. Triangle DAP is congruent to EBP. ठीक है यहाँ तक. Second, AD is equals to B. So let's start. देखो हमें क्या क्या करना है. What we have to do? First of all, we will try to prove these two triangles are congruent to each other. And then we have to prove AD and BE are equal. तो ये तो हो जाएगा. If we will prove these both the triangles are congruent, then using the CPCT criteria or the CPCT property, we can say that both the triangle will be equal to each other. But our first target is how to prove these both the triangles are congruent. तो चलिए करते हैं. जो हमें प्रूव करना है वो मेंशन करता हूँ. टू प्रूव triangle DAP is congruent to triangle EBP. This is the first part, that one we have to prove. And second is AD is equals to BE. Clear? These two things we have to prove. So let's proceed. Proof. As the given in the question, P is a midpoint, then it means AP is equals to PB. Now I am selecting both the triangle one by one from triangle DAP and triangle EBP. Clear? From triangle DAP and EBP. This is the triangle APB, and another triangle I am taking EPB. Clear? ये एंगल देखो इसके इक्वल है. क्लियरली दे रखा है. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. इट इज गिवन. एंगल DAP is equals to angle EBP.
क्लियर यहाँ तक? सेकेंड थिंग, ए पी इज इक्वल टू बी पी, इट इज गिवन, दिस थिंग इज गिवन. सेकेंड, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, इट इज ऑल्सो गिवन. क्लियर है? थर्ड देखो, हमें ये एंगल दे रखा है, ओनली दिस पार्ट इज गिवन, बट फॉर दिस ट्राइंगल वी नीड दिस वन एंगल, and similarly in this triangle we need this one angle. So this is the common part, this is the common part in both the triangles. क्लियर बात यहाँ तक? तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ, एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, डी पी बी, दिस इज गिवन. Now I am adding angle EPD or DPE in both the sides. देखो ये एंगल इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा, और यही एंगल इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा. So the common value I can add in the both sides. On adding angle DPE in both sides, दोनों साइड में यदि ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE. गॉट इट? एंगल APE और EPA प्लस DPE और क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू दिस वन एंगल, और वी कैन से दैट एंगल APD, एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल DPB plus EPD is equals to this one, angle EPB, angle EPB. अब देखो हम क्या क्या वेरीफाई कर चुके हैं. फर्स्ट वी हैव वेरीफाइड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन, सो एंगल दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, देन साइड, एंड देन द एंगल, दिस वन एंगल of this triangle. So again angle ASA criteria. What we can say, triangle DAP is equals, sorry is congruent. DAP किसके congruent होगा? देखो D वाला एंगल किसके इक्वल होगा? D पे तो कोई बहस नहीं करनी है, बिकॉज स्टिल नाउ D इज नॉट वेरीफाइड. A इज इक्वल्स टू B, सो A इज इन सेंटर, देन B विल बी ऑल्सो लाई इन द सेंटर. ठीक है? उसके बाद में कौन सा एंगल आ रहा है? P. तो P वाला पार्ट P के ही इक्वल है, यहां से पता चलेगा APD देन EPB, तो P आ गया, इसका मतलब P लास्ट में, तो P लास्ट में. अब बचा क्या? D लिया ना मैंने, तो बच गया, देखो E बच गया, EBP. Clear? So first thing we have proved. Now for second, using CPCT, congruent part of the corresponding part of the congruent triangles are equal. CPCT mean क्या हुआ? Angle D is equals to E, A is equals to B and P is equals to P. Side DA is equals to EB. Side DA is equals to EB. Side DA is equals to EB. DA is equals to EB. And this is the second part of this question. I hope so you understood. So please pause this and note it down. Now I'm starting the next 8th question.
And this is the last and final question of the exercise 7.1. A structure is given. Eighth question. Structure is given like this, and the labeling is A, C, B, D, and this is the point M. Clear? Now the given question is, in a right angle triangle ABC. ABC is a right angle triangle in which right angle at C. So this triangle is 90 degree at the point C. M is the midpoint of hypotenuse AB. M is the midpoint of AB. It means AM is equals to BM. Clear? C is joined to M. C is means we join C and M and produced to a point D, and it produced up to the point D such a way that DM is equals to CM. DM is equals to CM. So these both are equal. Got it? Point D is joined to point B and D point joined with point B. Then show that. अब हमें जो प्रूव करना वो लिखता हूँ. To prove, first, triangle AMC is congruent to triangle BMD. Second, triangle DBC is a right angle. Angle DBC is a right angle. It means 90 degree. Third, triangle DBC is congruent to triangle ACB. And last, fourth, CM is equals to half of AB. These four things we have to prove. मैं एक बार वापस से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ. ABC is a right angle triangle at which C is equals to 90 degree, and M is the midpoint of AB. We join M and C, and then we produce CM up to the point D in such a way that DM is equals to CM after we join D and B. And these things we have to prove for the given question. Got it? So I am starting the proof of this one. First of all, which thing we have to prove? AMC and triangle BMD. Triangle AMC and BMD. From triangle AMC and triangle BMD. ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ध्यान से देखना, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, एंड दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो थ्री एलिमेंट ऑफ बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स वी हैव टू इक्वल टू ईच अदर. नाउ विच टाइप ऑफ द क्राइटेरिया वी विल यूज फॉर इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन विच थिंग्स आर गिवन इक्वल. पहले मैंने AMC लिया है, ये वाला ट्रायंगल, तो इसकी साइड AM इज इक्वल टू BM. AM is equals to BM, it is given. Second thing, AM is equals to BM. Second thing, DM is equals to CM. DM is equals to CM, this is also given. Next thing, angle BMD. Angle BMD is equals to angle AMC. AMC, region vertically opposite angle. क्लियर है? सो यूजिंग, देखो, साइड देन एंगल देन साइड, SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, वी कैन से दैट ट्राइंगल BMD, AMC लेना है ना, पहले AMC ले लो. ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो
m इक्वल टू m इक्वल टू कौन सा एंगल, m इक्वल टू m, और m यहाँ सेंटर में है तो सेकंड वाले ट्राइंगल में भी m सेंटर में ही रहेगा। क्लियर? आर्टिट AMC, AM साइड AM इज इक्वल टू BM, तो m तो आ गया डेफिनेटली B आएगा। ठीक है, बच क्या गया, D बचा, अब तो थर्ड, और ये हो गया अपना प्रूव। फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव। अब सेकंड की बात करते हैं। एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DBC को 90 डिग्री प्रूव करना है, मीन्स ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये 90 बताने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसके इस ट्रायंगल में बस इतना ही पार्ट आ रहा है, ये नहीं आ रहा, और इस ट्रायंगल में भी ये वाला पार्ट आ रहा है, ये नहीं आ रहा। इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। अब हम सेलेक्ट करते हैं एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल और ये, पहले अपन इन दोनों की बात करते बड़े वाले, इन दोनों ट्रायंगल्स की। देखो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, होगी क्या, शायद नहीं, ये इसके इक्वल पॉसिबल नहीं होगी। तो फिर दूसरा कोई मेथड सोचते हैं। ये देखो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी यूजिंग द CPCT। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ यूजिंग CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा, इसके सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने का मीनिंग ये निकला कि साइड AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू, हम इसका यूज लेंगे कहीं ना कहीं, AC इज इक्वल टू BD। अब इस ट्रायंगल में एक तो देखो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड कॉमन हो गई दोनों में। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में भी है ये BC, एंड इन दिस ट्रायंगल ऑल्सो दिस BC एग्जिस्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आगे चलते, देखो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा। देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू D, तो इसका जो C एंगल है वो इसके D के इक्वल होगा, और इसका जो A एंगल है वो इसके B के इक्वल होगा, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात। और हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल के लिए हमें जैसे भी जस्टिफाई करना है, ट्राई करते हैं। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो एक बार मैं रफली कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। यू मान लो दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, मीन्स ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे, these both angles are equal and these are alternate interior angle और internal alternate angle, कैसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो भी आप बोलना चाहो। एंड these are possible if and only if the given lines are parallel. Similarly, if these are equal, it means BD and AC both are parallel to each other. क्लियर है बात यहाँ तक? पैरेलल होने से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो हियर। एंड वन मोर थिंग, एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, एंगल ACD विच आर alternate interior angles. क्लियर है बात यहां तक? which are alternate interior angle and this is possible if and only if DB parallel to AC। ये तभी पॉसिबल होगा जब DB इसके पैरेलल होगी, और DB एंड AC बोथ आर पैरेलल, देन वी कैन से दैट दीज आर अलाइड एंगल, और इनका सम क्या होगा 180 डिग्री।
देन एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन allied angles, and angle C is already 90 degree. Then angle B is also 90. ये इधर आके माइनस हो जाएगा 90 डिग्री. नेक्स्ट थिंग वी हैव प्रूव. सेकेंड पार्ट अपना ये प्रूव हो गया कि ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90 एंड 90 डिग्री के. थर्ड पार्ट साथ साथ हो जाएंगे, मेंशन करने की जरूरत नहीं है. ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी. तो ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी. सेलेक्ट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स. अगेन फ्रॉम ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी. देखो आप DB is equals to AC. This one DB is equals to AC. We have proved. DB is equals to AC. It is proved. पहले अपन ने DBC लिया है, कौन सा एंगल DBC. तो DBC के सभी एलिमेंट मेंशन करने की कोशिश करेंगे अपन फर्स्ट में. एंगल B is equals to एंगल C. ये भी अपन ने प्रूव कर दिया. B is equal to 90 डिग्री एंड C भी कहीं ना कहीं 90 डिग्री होगा, जो कि ऑलरेडी दे रखा है. एंगल B is equals to एंगल C is equals to 90 degree. It is given. Sorry, it is also proved. It's not given, but we proved. C is equal to 90 दे रखा था, but B is not equal. B not given, but we proved that this is also equals to 90 degree. Second thing, BC दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी. BC इज इक्वल्स टू BC. इट इज कॉमन साइड. देखो आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन, देन साइड, देन एंगल एंड देन साइड. सो SAS क्राइटेरिया. SAS क्राइटेरिया. बोथ द ट्रायंगल कौन सा वाला, एक तो DBC यही होगा क्योंकि हमें यही प्रूव करना है. DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. ये अपना थर्ड पार्ट हुआ. अब फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल्स टू AB. तो यहाँ पे CPCT यूज करके, CPCT बाय CPCT व्हाट वी कैन से, CPCT से हम ये बोल सकते हैं DC इज इक्वल्स टू AB. और ये कहाँ पे मेंशन करूँ, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा DC इज इक्वल्स टू AB. DC इज इक्वल्स टू AB. क्लियर है. और हमें DC की जगह पे क्या चाहिए, CM चाहिए. ठीक है बात यहाँ तक. DC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB चाहिए, या फिर ये अपन ध्यान में रखेंगे. अब बात करते हैं AB. AB का क्या मीनिंग होता है, AB इज इक्वल्स टू, AB इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूं क्या, AB इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे करो, थोड़ा सा इजी बनाता हूं. चलो इसी को यूज कर लेते हैं. AB इज इक्वल्स टू DC इज ट्वाइस, M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, देन DM इज इक्वल्स टू CM. तो हम DC को ट्वाइस ऑफ CM बोल सकते हैं, है ना. DC की जगह लिखा मैंने ट्वाइस ऑफ CM. क्लियर है बात यहां तक. तो अब तो ये डायरेक्ट ही हो गया ना. देन CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A. दिस इज द थर्ड पार्ट. देखो इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ. AB इज इक्वल्स टू, हमें पता है CD और DC. AB इज इक्वल्स टू, DC का मतलब होगा DM प्लस MC.
डी एम प्लस एम सी और सी एम, डी एम किसके इक्वल है, सी एम के, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी एम प्लस सी एम, और ये हो गया 2 सी एम, ए बी इज इक्वल टू 2 सी एम एंड देन सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. This one we have to prove, and finally we have proved all the parts of the given question number 8, and this is the last and final question. I hope so you understood, so please pause the video and note it.